Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 14 of the course Network Security. Let us first have a look on what we have discussed in our previous lecture. We have been discussing classical ciphers, and we have discussed how classical ciphers work. We have explored different schemes or different algorithms that are used for classical ciphers. We talked about substitution cipher and transposition ciphers. And in our previous lecture, we talked about another example of the substitution cipher, that was Vigenegar cipher, in which we have text and we have key. Obviously, we will be having a key. But the specialty here in Vigenegar cipher is that the key size would be of same length as of the plain text. And then we use rows and columns. We place the plain text, we place the key, we write all the alphabets, and then accordingly we derive our cipher text. We also discussed one-time padding. So the difference in Vigenegar cipher and the one-time padding is that in Vigenegar cipher we had a matrix or a table of 26 into 26, means that we had 26 columns and 26 rows to accommodate all the alphabets from A to Z. In one-time padding, we also make use of a space, a pad. So this makes the matrix as 27 columns long. Now, making this table or this matrix 27 columns long make the OTP, make the one-time password unbreakable. And we have explored through an example that the one-time pad, if they are used and if they are used with spaces, you can reveal, or an attacker can reveal, a meaningful text, but there will be multiple meaningful text will be revealed. आप जब पैडिंग यूज करेंगे, सो अगर हैकर को की पता चल भी जाए और वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट निकाल भी ले, तो यहाँ पे मजे की बात ये होगी कि यहाँ पे मोर देन वन मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट निकलेंगे. जब मोर देन वन मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट निकलेंगे, सो ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल मैसेज कौन सा था, करेक्ट मैसेज कौन सा था. मीनिंगफुल निकल आए, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि करेक्ट मैसेज कौन सा था. सो इसकी बेस पर वी से दैट द वन टाइम पैडिंग इज unbreakable, because even if the key is known, if the plain text is received, the revealed text would be meaningful, but it would be having more than one meaning, it would be having more than one purpose, and the intended purpose of that particular message will not be revealed. But there is a problem with one-time pad. They are not very practical. In fact, they are not actually practical. Why are not they? We don't use them in computer security or information security. Why we don't use them? There are three reasons that we discussed in our previous lecture, and that was, first of all, generating large quantities of random keys in an issue. For example, you have got a message, a plain text, in which there are, assuming there are 30 characters, there are 30 letters. So the key that would be required for the OTP, for the one-time pad, must also be of 30 letters or 30 characters. And next time, if you want to do it again, or if somebody want to make use of OTP, they have to create another random long key. So the issue is generating large quantities of random keys. The second reason is that the key cannot be repeated. For example, assuming that there is a third party
who is responsible for generating this key. Now there would be a problem for that third party, for that trusted third party to have such keys that will not be repeated. मतलब एक तो लार्ज क्वांटिटीज की कीज प्रोड्यूस करना और फिर इस तरीके से प्रोड्यूस करना कि वो रैंडम हो, और इसके अलावा इस चीज का भी ख्याल रखना कि ये की रिपीट ना हो। मतलब एक कन्वर्सेशन के लिए अगर एक की यूज हुई है तो ये की किसी दूसरी कन्वर्सेशन के लिए यूज नहीं होगी। वन टाइम पैडिंग की हम बात कर रहे हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ट्रस्टेड पार्टीज ये इतनी बड़ी की डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है लॉन्गर कीज का, ठीक है, वो इससे ज्यादा टफर है वन टाइम पैड के लिए। सो अगर इसकी अनकंडीशनल सिक्योरिटी की बात की जाए, सो वन टाइम पैड में अनकंडीशनल सिक्योरिटी है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम इसको एक्चुअली डिप्लॉय नहीं कर सकते, हम इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज चैलेंज। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोजिशन साइफर्स की तरफ भी हमने बात की, और हमने बात की कि ट्रांसपोजिशन साइफर्स वो होते हैं जिसमें आप प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स को ही या अल्फाबेट्स को ही या एलिमेंट्स को सिंपली रिप्लेस या रीअरेंज कर लेते हैं या शफल कर लेते हैं। और इसकी दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, एक था रेल फेंस साइफर और दूसरा था रो साइफर, जिनको हमने जिनको यूज करते हुए हमने प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट भी बनाया और साइफर टेक्स्ट से वापस हमने प्लेन टेक्स्ट भी हासिल किया। अगर इसको एक हम अपनी डिस्कशन को और हम अपने साइफर्स को अगर एक टेबुलर फॉर्म में या एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वो कुछ इस तरीके से होगा। सो हमारे पास साइफर्स तीन तरह के हैं। एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर, दूसरा है हमारे पास ट्रांसपोजिशन साइफर्स। सो सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर्स ये क्लासिकल साइफर्स भी कहलाते हैं। क्लासिकल साइफर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये वाइडली यूज्ड हैं, एक्सेप्टेड हैं और मोर और लेस पूरी दुनिया में जो है वो इनका इस्तेमाल वन फॉर्म और दी अदर है, या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताए जाते हैं या डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सिखाए और बदलाए जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर ये दोनों ही क्लासिकल साइफर्स हैं और एंशिएंट टाइम से भी ये चलते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर की हम बात करें तो इसमें हमने 5 साइफर्स जो है वो डिस्कस की है। सबसे पहले शिफ्ट साइफर, जिसको हम सीजर साइफर कहते हैं। शिफ्ट साइफर की एग्जांपल ये थी कि वर्किंग ऐसे थी कि आप अल्फाबेट्स को शिफ्ट कर देते हैं, आप अपने लेटर्स को जंप दे देते हैं, और ये जंप कितना होगा? 2 अल्फाबेट्स का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, 10 का होगा। आप ये की साइज में डिफाइन करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जंप 2 अल्फाबेट्स का है, सो की वैल्यू 2 हो जाएगी, और की वैल्यू 2 होने का मतलब ये होगा कि ए की जगह आप 2 का जंप लेंगे और ए को छोड़ के बी और सी जो है वो आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा। सो ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज सी इफ द के इज इक्वल टू 2। Likewise, B would be represented as D because K size is equal to 2 and C would be represented as E. So इस तरीके से आप लेकर जंप डिफाइन करते हैं, की का साइज डिफाइन करते हैं और आप अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने क्रिप्टो एनालिसिस के हवाले से बात की थी, अब अगर शिफ्ट साइफर को एक अटैकर डिटेक्ट करना चाहे, उसमें से प्लेन टेक्स्ट रिवील करना चाहे, तो उसके लिए आसान इस सेंस में है कि जब वो इस पर ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करेगा, सो आसानी से प्लेन टेक्स्ट रिवील कर सकता है। कैसे? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 26 कैरेक्टर्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। सो या के का साइज 1 होगा और द के साइज वुड बी इक्वल टू 2 और 3 और 4 एंड अ मैक्सिमम ऑफ के इज इक्वल टू 26। इसके अलावा नहीं है। सो इफ एन अटैकर और क्रिप्टो एनालिस्ट अप्लाई द ब्रूट फोर्स अटैक ऑन द शिफ्ट साइफर और सीजर साइफर, he would be easily
he would be able to easily obtain the plain text. The next was alphabetic cipher, and in which we discussed that the alphabets would be randomly replaced by other elements. मतलब उसमें k का साइज डिफाइन नहीं होगा कि अगर a जो है वो c से रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि जंप 2 का है या k इज इक्वल टू 2 है, b जो है वो इसी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है d से। अनलाइक सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर में रैंडमली अल्फाबेट्स डिफाइन होते हैं, जिस तरह a रिप्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल W से, B रिप्रेजेंट होगा L से, C रिप्रेजेंट होगा P से। सो आप रैंडमली अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कराते हैं। इसको दूसरे अल्फाज में मोनो अल्फाबेटिक साइफर को आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी ABC लिखते हैं। अपनी ABC लिखने का मतलब ये है कि आपने A को रिप्रेजेंट कर दिया किसी अल्फाबेट से, B को रिप्रेजेंट कर दिया किसी अल्फाबेट से, और जब आप अपनी ABC लिख लें सो उसको यूज करते हुए आप प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल करते हैं। मोनो अल्फाबेटिक साइफर की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ये इस पे आप ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 26 फैक्टोरियल पॉसिबल कीज बनती हैं मोनो अल्फाबेटिक से। 26 फैक्टोरियल आपको वैल्यू देता है 4 × 10⁻26, जिसकी अगर रफली एस्टिमेट किया जाए सो इट कैन टेक years and years, maybe hundreds and thousands of years to break the mono alphabetic cipher. But आप इस पर ब्रूट फोर्स अटैक से तो ये सिक्योर है, लेकिन ये क्रिप्टो एनालिसिस से सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक, जिसमें हमने ये बात किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टेन अल्फाबेट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि ई। आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी ऐसे कहीं से भी उठा के देख लें, किसी बुक से, किसी मैगजीन से, किसी वेबसाइट के कंटेंट से, आप उसमें देखेंगे कि सर्टेन अल्फाबेट्स, सर्टेन लेटर्स, दे आर हाईली बीइंग यूज्ड, वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। और अगर उस पैराग्राफ से उनकी परसेंटेज निकाली जाए तो एवरेजली आपका ई सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है, उसके बाद टी सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है, और इसी तरह ए और एस ज्यादा यूज होते हैं, और जो कम यूज होता है वो आपका जेड है, एंड वगैरह। सो इसी चीज को, लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को सामने रखते हुए आप जब साइफर टेक्स्ट पर लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो वहां से आपको ढेर सारे आइडियाज होना शुरू हो जाते हैं। अगर मोनो अल्फाबेटिक साइफर में रैंडमली अल्फाबेट्स रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है, सो आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक के थ्रू आप साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल कर ही लेंगे। इसके बाद हमने पॉली अल्फाबेटिक साइफर की बात की थी, जिसमें हमने विगनेगर साइफर एक एग्जाम्पल था, जिसमें हमने प्लेन टेक्स्ट और आपकी की थी। प्लेन टेक्स्ट का जो साइज है, की का भी वही साइज होगा, आपके सारे अल्फाबेट्स होंगे ए से जी तक, ठीक है। इसी तरह की में भी ए से जी तक। फिर आप अकॉर्डिंगली उस मैट्रिक्स को या उस टेबल को फिल करते हैं, और आप रो और कॉलम जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो आपके प्लेन टेक्स्ट के पहले वर्ड का या पहले लेटर का साइफर टेक्स्ट बन जाता है, साइफर लेटर बन जाता है। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट के दूसरे अल्फाबेट को आप देखते हैं वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, जहां पे वो क्रॉस करता है वो आपके साइफर टेक्स्ट का दूसरा लेटर बन जाता है, एंड यू कीप गोइंग ऑन। इसी तरह हमने हेल्थ साइफर की भी बात की थी, जिसमें हमने अल्फाबेट्स की वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, और इसी तरह जेड की वैल्यू है 25। टोटल ऑफ 26 अल्फाबेट्स हैं 0 से 25 तक। फिर हम इसको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की थी वो था वर्ड एक्ट ACT, जिसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। सो हमने इसकी पोजीशंस ली, इसके न्यूमेरिकली जो पोजीशन है वो लेते हैं, हम उसको किसी की के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं, और जो वैल्यूज आती हैं उसके अगेंस्ट हम साइफर टेक्स्ट एक क्रिएट करते हैं। ऑटो की साइफर की भी इसी तरह हमने एग्जाम्पल देखी थी और हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी ट्रांसपोजिशन साइफर्स की। ट्रांसपोजिशन साइफर्स वो साइफर्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं लेते, मतलब ए की जगह
सी रिप्रेजेंट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं होगा, बल्कि पोजीशन जो है वो लेटर्स अपनी चेंज कर देते हैं. दे ट्रांसपोर्ट, दे change the position, the letters in the plain text, they change their position in order to obtain a ciphertext, and then accordingly you can reveal the plain text from the ciphertext. Two examples that we discussed was rail fence cipher and row transposition cipher. रो ट्रांसपोजिशन साइफर में हमने ये बात की कि आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपकी कोई की है, ठीक है, आप उसको सर्टन रोज में डिफाइन करते हैं, फिर आप सर्टन कॉलम्स में डिफाइन करते हैं, फिर कॉलम के आप नंबर ले लेते हैं. लेट्स से 4 रोज होंगी और 7 कॉलम्स होंगे. कॉलम नंबर बीच वाले कॉलम को आप लेट्स से किसी भी की के थ्रू 1 कह देते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह 7, और फिर आप कॉलम बाय कॉलम रीड करते हैं. ठीक है, तो कॉलम 1 के जो लेटर्स हैं वो आप पहले लिख लेंगे साइफर टेक्स्ट में, फिर इसमें कॉलम 2 के आप लेटर्स साइफर टेक्स्ट में लिख लेंगे, फिर कॉलम 3 के. ये था रो ट्रांसपोजिशन साइफर. और रेल फेंस साइफर में हमने ये बात की थी कि आपका प्लेन टेक्स्ट है, आप प्लेन टेक्स्ट को डायगोनली नंबर ऑफ रोज में लिखते हैं और फिर इनको रो बाय रो साइफर टेक्स्ट में हासिल करते हैं. जैसे एक प्लेन टेक्स्ट था, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी. सो MEET मीट को हम जब रेल फेंस साइफर में कन्वर्ट करते थे, सो हम क्या करते थे कि मीट MEET, एम लिखा पहली रो में, फिर डायगोनली ई लिखा दूसरी रो में, फिर ई लिखा पहली रो में, फिर ET लिखा जो है वो हमने सेकंड रो में, और फिर ये सारा प्लेन टेक्स्ट डायगोनली 2 या 3 रोज में लिखने के बाद आप फिर रो बाय रो उसको रीड करते थे. तो आपका ये रेल फेंस साइफर था. सो सब्स्टिट्यूशन साइफर और क्लासिकल ट्रांसपोजिशन साइफर्स, they are also called classical ciphers because I have mentioned the reason they have been used over the years and so on. There are some other types of ciphers as well, and we discussed that product cipher. Product cipher में ये है कि आप मिक्स एंड मैच करते हैं, आप सब्स्टिट्यूट भी करते हैं और आप ट्रांसपोजिशन भी करते हैं. सो आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर का आपने प्रोडक्ट कर दिया. ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को. जिस तरह 4 और 6 का प्रोडक्ट होगा 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 6. तो इसी तरह आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों का ही यूज करते हुए आप प्रोडक्ट साइफर यूज करते हैं. सो ये मुख्तलिफ साइफर्स थे जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे थे. एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने ये याद रखनी है कि these are not the only ciphers. और अगर आप पिछले लेक्चर्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि whenever you talk about cryptography and creating new or writing new ciphers, it involves creativity. इसमें क्रिएटिविटी का बड़ा अंसर शामिल है. मतलब आप चाहें तो आप अपना साइफर लिख सकते हैं, आप अपना साइफर बना सकते हैं. ठीक है, और आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आप कोई भी मिक्स एंड मैच यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोजिशन साइफर यूज करें, आप कोई शिफ्ट साइफर यूज करें, आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन यूज करें, कोई तीसरी स्कीम आप ले हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आप एक नई साइफर स्कीम, नया साइफर एल्गोरिथम आप बना सकते हैं इफ यू आर क्रिएटिव, एंड देयर कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आइडिया आपको देता चलो. अगर आप शिफ्ट साइफर की बात करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं मैं शिफ्ट साइफर भी यूज करूंगा, मैं 3 फेजेस करूंगा. पहले केस में मैं प्लेन टेक्स्ट को शिफ्ट साइफर के थ्रू बनाऊंगा, फिर साइफर टेक्स्ट जो ऑब्टेन होगा उसको मैं पॉली अल्फाबेटिक साइफर में गुजारूंगा. ठीक है, और पॉली अल्फाबेटिक साइफर में गुजारने के बाद जो मुझे साइफर टेक्स्ट लेगा उसको तीसरे लेवल में, थर्ड राउंड में मैं रो ट्रांसपोजिशन से गुजारूंगा. ठीक है, सो लास्टली जो आपके पास साइफर टेक्स्ट आएगा वो 3 राउंड से होकर गुजरा है. ठीक है, ये एक एग्जांपल, और इसी तरह ढेर सारी अदर देयर कुड बी सो मेनी ऑफ अदर एग्जांपल्स. सो द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट you can write, you can develop and create
your own cipher. It is not difficult, and these ciphers which have been developed, discussed and are widely being used, ये मतलब आप और मेरे जैसे जो ह्यूमंस थे या वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये डेवलप किए, उन्होंने ही ये इजाद किए हैं। सो आज हम अपने पार्ट सी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को देखेंगे। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और आज के मजीद कंटेंट्स क्या हैं लेक्चर के, वो देखते हैं। ब्लॉक साइफर्स और स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे विद सम एग्जांपल्स। सेकंड डायमेंशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, रिकॉल वी डिस्कस्ड देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ द क्रिप्टोग्राफी, सो वी विल फोकस ऑन द सेकंड डायमेंशन ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। और सेकंड डायमेंशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी में ये था, फर्स्ट डायमेंशन में द ऑपरेशन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट, ये पहली डायमेंशन थी। और हमारे पास पहली डायमेंशन के लिए 2 तरीके थे, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन, और इसकी हमने ढेर सारी एग्जांपल्स दी थी। सेकंड डायमेंशन ये थी कि आप अपने साइफर टेक्स्ट को, अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बनाने के लिए आप एक की यूज कर रहे हैं या 2 की यूज कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कीज और की यूज टू चेंज द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, सो ये सेकंड डायमेंशन थी। सो आज हम जो बात करेंगे वो हम सिंगल की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की हम बात करेंगे। फीस्टल साइफर क्या है या फीस्टल स्ट्रक्चर क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसको भी आज के लेक्चर में देखेंगे। और इंपॉर्टेंटली एक हमारे पास एनक्रिप्शन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एक एग्जाम्पल है, एक एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। सो हम DES को भी आज देखेंगे। सो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू प्रेजेंट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, होती क्या है, कैसे अकॉम्प्लिश की जाती है, क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और DES का जो एल्गोरिथम है, इसको बनाने के लिए या इसको क्रिएट करने के लिए कितने राउंड्स हैं, कितने फेजेस हैं, उनमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, आप इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे। सो लेट अस बिगिन विद सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, जिसमें हमने बात की थी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। और फिर हमने बात की थी कि प्लेन टेक्स्ट पर जब आप कोई की अप्लाई करते हैं और प्लेन टेक्स्ट पर की अप्लाई करने से ये जो ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन है ये। और इसी तरह दूसरी साइड पर रिसीवर साइफर टेक्स्ट पर की अप्लाई करते हुए वापस प्लेन टेक्स्ट हासिल करता था, इसको हम कहते थे डिक्रिप्शन या डिसाइफरमेंट। सो इस क्रिप्टोग्राफी के प्रोसेस में, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में अगर सेम की यूज हुई है, जिस तरीके से एनक्रिप्ट किया गया, जिस की को यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया गया, उसी तरीके से उसी की को यूज करते हुए अगर डिक्रिप्ट किया जा रहा है, सो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक, एक जैसी, इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, इसको क्लासिकल एनक्रिप्शन भी कहते हैं, इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, इसको सिंगल की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। सो इसके ये मुख्तलिफ नाम हैं। सो जब भी ये 4-5 नाम आए, आपने जहन में यही ले आना है कि सेम की यूज होगी, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होगी। जितने भी क्लासिकल साइफर्स हैं, ये सारी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल्स हैं। कैसे? अगर आप सीजर साइफर की एग्जांपल लें, जिसमें हम डिसाइड कर लेते थे कि k इज इक्वल टू 2 है, जिसका मतलब यह है कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल करने के लिए आपने 2 का जंप यूज किया है। अब रिसीवर k का साइज 2 ही एज्यूम करता है। रिसीवर जब साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल करना चाहता है, जब डिक्रिप्शन करना चाहता है, सो वो सेम साइज की k इज इक्वल टू 2 ही यूज करेगा और 2 का जंप बैक करेगा। यहां पे फॉरवर्ड जंप था, यहां पे वो बैक जंप करेगा, तो साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट हासिल करेगा। सो अगर यहां पे k का साइज 2 था और अगर रिसीवर ने k का साइज 3 कर दिया या 4 कर दिया, सो ये रिसीवर कभी भी
साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि आपकी जो की यूज की गई है इंक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए, वही की डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए भी यूज की जाए। इसी तरह आप एग्जांपल ले लें ट्रांसपोजिशन साइफर्स की। ट्रांसपोजिशन साइफर में हमने बात की थी रो साइफर की। रो साइफर में हमने कहा था कि आप नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉलम्स को नंबर देके कॉलम बाय कॉलम रीड आउट करते हैं। अब अगर इंक्रिप्शन के प्रोसेस में 2 रोज और 4 कॉलम्स यूज किए गए हैं और कॉलम नंबर जो बीच वाला कॉलम था वहां से शुरू करके कॉलम 1 2 3 और इस तरीके से नंबर दिया गया है, तो बिल्कुल यही प्रोसेस, यही स्टेप्स डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए भी यूज होंगे। अगर यहां पे 2 रोज और 4 कॉलम्स थे और बीच वाला कॉलम नंबर 1 था, तो डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए जरूरी है कि वहां पे भी 2 रोज 4 कॉलम्स और बीच वाले कॉलम को आप जो है वो कॉलम नंबर 1 ही कहेंगे। अगर आपने रिसीवर ने लेट से 2 रोज के बजाय 3 रोज कर दी या 4 कॉलम्स के बजाय 3 कॉलम कर दिए, सो ये की चेंज हो गई। सो की चेंज होगी तो कभी भी साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट हासिल नहीं कर सकते। सो जो की आपकी इंक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए यूज हुई है वही की आपके डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए यूज होगी। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं डेली लाइफ में, जिस तरह हमारे पास बाईसाइकिल्स होती हैं हम में से, या मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है। हमारे पास वो एक चेन वाला लॉक है, ठीक है। सो चेन वाला जो लॉक है, जो आप अक्सर अपनी साइकिल को किसी ग्रिल के साथ या अपने मोटरसाइकिल के व्हील को किसी पाइप के साथ बांधकर अपने उस मोटरसाइकिल या साइकिल को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि सेम की लॉकिंग के लिए भी यूज होती है और सेम की अनलॉकिंग के लिए भी यूज होती है, ठीक है। या दूसरे केस में आपके जितने भी ये ताले हैं, जिस की से ये लॉक होते हैं उसी की से ये अनलॉक भी होते हैं। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी बिल्कुल इसी तरह है। सो द पॉइंट हियर टू नोट इज दैट एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विल बी कैरिड आउट यूजिंग द सेम की, and the examples that we have discussed were all classical ciphers, and more specifically DES and AES. So DES and AES are other examples of symmetric key cryptography. We will discuss DES, but AES will be part of our next lecture. So let us see the symmetric key cryptography through the help of this particular figure. Here we can see that we have got a plain text, or which is given as input. There is an encryption algorithm, could be a classical cipher, could be DES, or could be ES. Now there is a key applied on this algorithm which changes the plain text into the cipher text. That cipher text is then transmitted over an insecure channel to the receiver. On the receiver side, you can see that the same key must be used in order to obtain these plain text from the cipher text. So there would be a decryption algorithm which will make use of the same key, and you will be ending up with having the original plain text. So the point here to strictly note is that same key will be used for the encryption and for the decryption. If you want to write symmetric key cryptography mathematically अगर आप देखना चाहें तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होगा, इस फॉर्मूला को देखने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लें कि लेजेंड क्या है। सो P आपका प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, C आपका साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, K जैसा कि नाम से जाहिर है की है, लेकिन हमारे इस केस में सिमेट्रिक की है, E फॉर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड D फॉर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। सो अगर आप एनक्रिप्शन की बात करें, सो C इज इक्वल टू, this means that you can obtain the cipher text if you apply a symmetric key on the plain text. The cipher text could be obtained is equal to when the encryption algorithm using a key K is applied on the plain text. या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं C is equal to E and K of P, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एनक्रिप्शन का एल्गोरिथम
यूज करते हैं और प्लेन टेक्स्ट पर की यूज करते हैं, सो आपके पास साइफर टेक्स्ट आता है। C इज इक्वल टू E और ब्रैकेट में K एंड P, जिसका मतलब ये है कि द साइफर टेक्स्ट विल बी ऑब्टेन्ड इफ एन एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज्ड व्हिच मेक्स यूज ऑफ अ की ऑन द प्लेन टेक्स्ट। और डिक्रिप्शन में क्या होगा? डिक्रिप्शन में यू कैन रिसीव प्लेन टेक्स्ट, P इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट कैसे आएगा? व्हेन द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इज अप्लाइड यूजिंग द सेम की। सेम की को आप अप्लाई करेंगे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के साथ, और ये सेम की और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम किस पर अप्लाई करेंगे? उस साइफर टेक्स्ट पर, उस C पर, तभी आपको प्लेन टेक्स्ट हासिल होगा। और दूसरे अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू डी डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाइड ऑन द साइफर टेक्स्ट मेकिंग यूज ऑफ द सेम की। सो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होती है। ब्लॉक साइफर्स। ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं? ब्लॉक साइफर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉक साइफर इज डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड DS एक ब्लॉक साइफर है, और अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि आपका प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में बनाने के लिए तीसरी डायमेंशन थी कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल कर रहे हैं, या आप पूरा ब्लॉक या पूरी स्ट्रीम दे रहे हैं प्लेन टेक्स्ट की उस एल्गोरिथम में, और पूरा ब्लॉक या पूरी स्ट्रीम हासिल हो रही है साइफर टेक्स्ट की। आइदर यू गो एलिमेंट बाय एलिमेंट, बिट बाय बिट, और you provide a whole input, a whole stream, a whole sentence to the algorithm and it gives you the ciphertext. So block ciphers की अगर बात करें, so DES block cipher के थ्रू काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, so ये बिट बाय बिट कन्वर्ट नहीं करता। जिस तरह हमने सीजर साइफर में बिट बाय बिट हम कन्वर्ट करते थे, A रिप्रेजेंट हो रहा है C से, B रिप्रेजेंट हो रहा है D से, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लॉक साइफर में आपने पूरे का पूरा प्लेन टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, वो जितनी भी उसकी लेंथ थी, और उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को, उस पूरे ब्लॉक को एल्गोरिथम यूज करते हुए साइफर टेक्स्ट में तकसीम किया, कन्वर्ट किया जाता है। सो यहां पे एल्गोरिथम रिक्वायर करता है, एल्गोरिथम की डिमांड है कि आप मुझे बिट्स न दें, आप मुझे पूरा ब्लॉक दें, तो हम इसको कहते हैं ब्लॉक साइफर्स। ब्लॉक साइफर की जो एक कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है वो है DS डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ द सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक साइफर्स। हम आज के लेक्चर में सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, और लेटर लेक्चर्स में हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ेंगे, जहां पे एक से ज्यादा कीज यूज हो रही हैं, एक प्राइवेट की यूज हो रही है और एक पब्लिक की भी यूज हो रही है। सो अगर यहां पे एक की है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। जबकि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें, जहां पे आपके पास मोर देन वन कीज हैं, एक प्राइवेट की और पब्लिक की है, वो रिलेटिवली आसान है। गो की कीज ज्यादा हो गई हैं, लेकिन स्टिल कॉम्प्लेक्सिटी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की ज्यादा है। स्ट्रीम वर्सेस ब्लॉक साइफर्स, अभी हमने बात की थी। अ स्ट्रीम साइफर इज वन दैट एनक्रिप्ट्स अ डिजिटल डाटा स्ट्रीम 1 बिट और 1 बाइट एट अ टाइम। मतलब हमने अभी यही बात की थी कि आपके या बिट बाय बिट ट्रांसलेशन हो रही है, या आपकी पूरे ब्लॉक बाय ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की ट्रांसलेशन हो रही है या कन्वर्जन हो रही है। सो बिट बाय बिट हो रही है तो इसको हम स्ट्रीम साइफर भी कहते हैं, ठीक है। या इसको आप याद रखने के लिए बिट बाय बिट के नाम से, या बाइट बाय बाइट, या एलिमेंट बाय एलिमेंट के नाम से आप याद रखते हैं। जबकि अभी हमने बात की ब्लॉक साइफर्स क्या है, आप पूरी एक उसको चंक दे देते हैं, पूरा एक ब्लॉक दे देते हैं, पूरी एक इनपुट देते हैं, और वो फिर इसको ब्लॉक साइफर को, ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ब्लॉक एग्जाम्पल्स की डिस्कस करें, सो RC4 सील जो है ये एग्जाम्पल है स्ट्रीम साइफर की। और ब्लॉक साइफर्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें, जहां पे प्लेन टेक्स्ट इज ट्रीटेड एज अ होल, सो इसकी एग्जाम्पल्स हैं DES डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल DES, आइडिया, ब्लोफिश, टूफिश, ये सारे these are all the examples of block ciphers। जी बात करते हैं फीस्टल साइफर की। फीस्टल
साइफर होर्स्ट फीस्टल जो कि जर्मन क्रिप्टोग्राफर था, उसने ये साइफर बनाया था और उसके नाम के बाद इसको फीस्टल साइफर कहा जाता है। ठीक है, ये होस्ट फीस्टल एक जर्मन क्रिप्टोग्राफर जो कि क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहा था और हु वर्कड ऑन द डिजाइन ऑफ साइफर्स एट IBM। ठीक है, IBM के लिए वो काम कर रहा था। उसने फीस्टल साइफर पर काम किया और उसके साइफर ने जो उसने एल्गोरिदम बनाया, जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का जो एल्गोरिदम उसने बनाया, जो एक नया मैकेनिज्म उसने डेवलप किया, उस मैकेनिज्म को इसी साइंटिस्ट के नाम से याद किया जाता है। सो फीस्टल साइफर। देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले ही बात कर रहा था कि इट डिपेंड्स ऑन दी क्रिएटिविटी। आप अगर क्रिएटिव हैं तो आप खुद से अपना एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बना सकते हैं। सो यहाँ पे फीस्टल साइफर ने भी IBM के लिए एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बनाया और ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम ये ब्लॉक साइफर that was later on became the basis for the development of data encryption standard in the 1970s. So फीस्टल साइफर ही एक्चुअली इसने बनाया जो कि बाद में बुनियाद बना डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की, या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बुनियाद फीस्टल साइफर है। सो होस्ट फीस्टल डिवाइस दी फीस्टल साइफर एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल प्रोडक्ट साइफर। जी, प्रोडक्ट साइफर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि जहां पे सब्स्टिट्यूशन भी होती है और ट्रांसपोजिशन भी होती है, सो मिक्स एंड मैच होता है। सो फीस्टल साइफर में सब्स्टिट्यूशन भी होगी और ट्रांसपोजिशन भी होगी। आइए मजीद बात करते हैं फीस्टल साइफर का स्ट्रक्चर, ये काम कैसे करता है। जिस तरह हम मुख्तलिफ साइफर्स देखते आ रहे हैं कि रो ट्रांसपोजिशन कैसे काम करता है, इसी तरह विगनेगर साइफर कैसे काम करता है, आपका सीजर साइफर कैसे काम करता है, सो इसी तरह फीस्टल साइफर कैसे काम करता है, यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले इट पार्टीशंस इनपुट ब्लॉक इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, इनपुट ब्लॉक है लेट्स से 64 बिट का, तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, 32 इंटू 32। एक को लेफ्ट ब्लॉक कह देता है, लेफ्ट हाफ कह देता है, दूसरे को राइट हाफ कह देता है। प्रोसेस थ्रू मल्टीपल राउंड्स। ठीक है, और उसके बाद मुख्तलिफ राउंड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर दिया और कोई सब्स्टिट्यूशन कर दी या ट्रांसपोजिशन कर दी, नहीं, बल्कि वो मुख्तलिफ राउंड है। एक राउंड है, उसके बाद दूसरा राउंड होगा, उसके बाद तीसरा राउंड होगा, और कुछ राउंड्स होने के बाद जो है वो एक्चुअली आखिर में आपके पास साइफर टेक्स्ट आएगा। परफॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन ऑन द लेफ्ट डेटा हाफ। ठीक है, लेफ्ट हाफ पर सब्स्टिट्यूशन का फंक्शन परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन राउंड फंक्शन ऑफ राइट हाफ एंड सब की। सब्स्टिट्यूशन इसने कैसे परफॉर्म किए, एक फंक्शन यूज करता है और एक की यूज करता है राइट हाफ पर। राइट हाफ से उसको जो ऑब्टेन हुआ है वो यूज करते हुए वो लेफ्ट हाफ पर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। देन हैव परम्यूटेशन स्वैपिंग हाफ्स, और फिर स्वैपिंग करता है। 2 हाफ्स जब आ गए तो अगले राउंड में इनकी स्वैपिंग करता है किसी फिक्स्ड ऑर्डर से। ये 4 स्टेप्स बड़ा इजीली डिस्क्राइब करते हैं फीस्टल साइफर को। सो यहां तक आपने जहन में ये रखना है कि ये इनपुट ब्लॉक लेगा, एक तो ब्लॉक साइफर है क्योंकि ये एलिमेंट बाय एलिमेंट या बिट बाय बिट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये जो है वो पूरे 64 बिट का ब्लॉक है उसको कन्वर्ट करेगा। सो आइडियली क्या करता है, 2 हाफ्स में तकसीम किया, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पर मुख्तलिफ राउंड्स अप्लाई करेगा, लेफ्ट हाफ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा, राइट हाफ पर जो है वो कोई सब की अप्लाई करते हुए कोई राउंडिंग का फंक्शन यूज करेगा, फिर अगले राउंड में उनकी परम्यूटेशन करेगा, और फिर आखिर में उसके पास एक साइफर टेक्स्ट ऑब्टेन होगा। अच्छा जी, virtually all conventional block encryption algorithms including DES are based on फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर। हम DES की बात करते आ रहे हैं। DES का स्ट्रक्चर टोटली बेस करता है फीस्टल साइफर के स्ट्रक्चर पर। जिस तरीके से फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से DES काम करता है, या अभी जैसे मैंने बात की कि DES की बुनियाद फीस्टल स्ट्रक्चर है। असल में फीस्टल स्ट्रक्चर लेटर ऑन जब स्टैंडर्डाइज हुआ,
जब इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया तो इसको फिर DES के नाम से याद कर दिया गया। अभी हमने बात की द प्लेन टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, देन टू हाफ्स पास थ्रू n राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग देन कंबाइन टू प्रोड्यूस द साइफर। मुख्तलिफ राउंड्स होंगे, n क्या है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सो n इज नंबर ऑफ राउंड्स। ईच राउंड I हैज एन इनपुट L of I and R of I derived from the previous round as well as sub key K of I derived from the overall K। इसका मतलब ये है, अब ये आपको एक फिगर के थ्रू भी, परहैप्स ये फिगर आ रही है इसके थ्रू भी बताता हूं, बट जस्ट यहां पर जहन में ये रखिए कि सबसे पहले टू हाफ्स में डिवाइड हुआ, n राउंड्स उस पे अप्लाई होंगे, हर राउंड की आउटपुट अगले राउंड के लिए इनपुट होती है, हर राउंड की आउटपुट अगले राउंड की इनपुट होती है। इसके अलावा एक मेन की है K और हर राउंड पर उस मेन की K की सब की अप्लाई होती है। एक मेन की K है, उसकी सब की हर राउंड पर अप्लाई होती है। ठीक है, मजीद बात हमारी जारी रहेगी। एंड ऑल राउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि एक राउंड पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है अगले राउंड पर भी वही होगा। अ सब्स्टिट्यूशन इज परफॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द डाटा। दिस इज डन बाय अप्लाइंग अ राउंड फंक्शन f। राउंडिंग ऑफ का आपको पता होगा। सो राउंडिंग फंक्शन f जो है वो अप्लाई किया जाता है राइट हाफ पर एंड ऑफ द डाटा फॉलोड बाय द XOR। ठीक है, XOR एक ऑपरेशन है। DLD की कॉन्सेप्ट्स को अगर रिकॉल करें, हमारे पास एंड ऑपरेशंस होते हैं, और ऑपरेशंस होते हैं, और एंड और ऑपरेशन को अगर आप मिक्स कर दें तो ये आपके पास एंड और या XOR का ऑपरेशन बन जाता है। सो XOR का ऑपरेशन अप्लाई करने से जो आउटपुट आती है वो लेफ्ट हाफ के लिए एज एन इनपुट काम करती है। जी, यहां पे फीस्टल साइफर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं टॉप से आपका प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, आपका प्लेन टेक्स्ट है। यहां पे हमने कहा कि ये कई बिट्स हो सकती हैं, हम लेकिन ये एक ब्लॉक साइफर है तो एक बिट नहीं होगी, आप इसको कई बिट्स देते हैं। 2 बिट्स हैं या 14 बिट्स हैं या 28 बिट्स हैं या 32 बिट्स हैं, 64 हैं, 128, कोई भी नंबर ऑफ बिट्स हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड द प्लेन टेक्स्ट इनटू टू हाफ्स। टॉप पे आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट हाफ है और एक राइट हाफ है। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि K1 आ रहा है पहले राउंड में। ठीक है, ये जो ग्रीनिश स्क्वायर है ये पहला राउंड है, फिर उसके बाद अनदर ग्रीनिश स्क्वायर दूसरा राउंड है, अनदर ग्रीनिश स्क्वायर तीसरा राउंड है, एंड कीप गोइंग ऑन। सो लेफ्ट हाफ में तकसीम किया, राइट हाफ में तकसीम किया, राइट हाफ लेफ्ट हाफ के लिए इनपुट बन रहा है। कैसे बन रहा है कि लेफ्ट हाफ राइट हाफ पर एक की सब की है K1 जो कि मेन की K से आ रही है वो, और राइट हाफ की जो वैल्यूज आई हैं उस पे राउंडिंग का फंक्शन अप्लाई होगा, और ये एंड और जोर का ऑपरेशन लेफ्ट हाफ पे अप्लाई होकर ये इनपुट क्रिएट हो रही है, ये एक आउटपुट क्रिएट हो रही है। राउंड 1 की आउटपुट अगले राउंड के लिए इनपुट के तौर पर काम कर रही है। राउंड 1 की आउटपुट अगले राउंड I के लिए इनपुट के तौर पर काम कर रही है, और जो काम हमने राउंड 1 में किया बिल्कुल वही काम राउंड 2 में या राउंड I में भी हो रहा है। मैं फिर बताता चलता हूं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बड़ा इजी है समझने के लिए, सिर्फ आपने सर्टेन स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले आपका प्लेन टेक्स्ट है जो कि 2 हाफ में तकसीम होगा, लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में। राइट हाफ जो है वो मेन की K की सब की को यूज करता है। मेन की लेट से 64 बिट्स की थी तो उसने उसकी सब की एक निकाली, और राइट हाफ के कंटेंट्स और सब की पर राउंड का फंक्शन f यूज किया जाता है, और लेफ्ट हाफ से इस फंक्शन की आउटपुट को एंड और जोर के ऑपरेशन के थ्रू कंकैटिनेट किया जाता है या अप्लाई किया जाता है ये ऑपरेशन, और ये आपको एक आउटपुट दे रहा है। इसी तरह दूसरा जो है वो भी आपको आउटपुट दे रहा है। सो ये 2
आउटपुट आपकी अगले राउंड के लिए इनपुट के तौर पर काम कर रही हैं। एंड कीप गोइंग ऑन, डिपेंड करता है आपके 1 राउंड है, 2 राउंड है, 4 राउंड है, कैन बी एनी नंबर ऑफ राउंड्स। एंड एट द एंड यू ऑब्टेन अ साइफर टेक्स्ट विच इज ऑफ द सेम नंबर ऑफ बिट्स दैट यू हैड ओरिजिनली। जो आपकी ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स थी प्लेन टेक्स्ट में, उतनी ही साइफर टेक्स्ट की बिट्स आपके पास हासिल होती हैं। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है प्रोडक्ट साइफर की, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रांसपोजिशन भी कर रहे हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ राउंड्स भी हैं, और एट द एंड आपके पास साइफर टेक्स्ट हासिल हो जाता है। डिजाइन फीचर्स ऑफ फीस्टल साइफर की अगर बात करें तो हमारे पास ब्लॉक साइज है, की साइज है, नंबर ऑफ राउंड्स हैं, सबकी जनरेशन एल्गोरिथम्स है, और राउंड का फंक्शन है। यहां पे हम बात कर रहे थे राउंडिंग का फंक्शन है, सब की के है, ठीक है। ये कहां पर है, आइए इसको देखते हैं। सो ब्लॉक साइज, लार्जर ब्लॉक मींस ग्रेटर सिक्योरिटी, ठीक है। यहां पे हमने एक एग्जांपल ली कि 2 बिट्स का हो सकता है, बट इट कैन बी मोर देन 2 बिट्स, इट कैन बी 4, इट कैन बी 8, 16, 32, 64। आइडियली हम कहते हैं कि जितना बड़ा ब्लॉक होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। तो मतलब अगर आप 32 बिट का प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं, वो इतना सिक्योर नहीं है जितना कि 64 बिट का ब्लॉक जो है वो सिक्योर है। की साइज आपकी 56 से 128 बिट्स तक हो सकती है। नंबर ऑफ राउंड्स की बात करें, अ सिंगल राउंड ऑफर्स इनएडुकेट सिक्योरिटी, अ टिपिकल साइज इज 16 राउंड्स। यहां पर अगर आप एक ही राउंड की बात करें तो आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है, लेकिन आपकी मोर देन 1 राउंड्स अप्लाई करें, आइडियली 16 राउंड्स अप्लाई करें, सो ये आपकी ज्यादा सिक्योरिटी है। तीसरे स्टेप में हमने ये बात की है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने चाहिए। एक राउंड कोई ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, आप एक से ज्यादा राउंड्स अगर यूज करेंगे सो दैट इज कंसिडर्ड मोर सिक्योर। और आइडियली आप 16 राउंड्स अगर यूज करते हैं, 16 राउंड्स तक जाते हैं, ये फीस्टल नेटवर्क और या फीस्टल स्ट्रक्चर को एक अच्छा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम या एक अच्छा सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी बनाता है। By 16 rounds, as we can see in this particular diagram, there are only 3 rounds discussed here. Round 1, round I, and round N. So you can have, it is better to have at least 16 rounds. This will give you appropriate or required level of security. Sub-key generation algorithms, here we have seen that there is a key coming or key is required for each round. For example, in round 1, k of 1 is required. In round I, k of I is required. In round N, k of N is required. So key for each round is required. How will this key be generated? So sub-key generation algorithms, which is of greater complexity and should lead to greater difficulty to cryptanalysis. The beauty of Feastel structure is that it is not making use of a single key or of the same key in each round. It is making use of different keys in each round. हर राउंड पर एक अलग की यूज हो रही है, हर राउंड पर अलग की यूज हो रही है। राउंड 1 पर राउंड 1 की यूज हो रही है, राउंड 2 पर राउंड 2 की यूज हो रही है, राउंड 3 पर राउंड 3 की, लास्ट राउंड पर लास्ट की यूज हो रही है। ये कीज क्या है? हर राउंड की एक मेन की से डिराइव्ड है, मेन की सब कीज हैं, मेन की सब कीज हैं। एंड राउंड फंक्शन, यहां पे हमने बात की एफ, आप हर राउंड में देख सकते हैं मिडल में लिखा है एफ। ये एफ क्या है? ये राउंड का फंक्शन है, और ये क्या काम करता है? ये अगेन ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी है, जनरली मींस ग्रेटर रेजिस्टेंस टू क्रिप्टोएनालिसिस। अब ये सारी चीजें मिलकर ये राउंडिंग ऑफ फंक्शन, ये हर नंबर ऑफ राउंड्स, हर राउंड के लिए सेपरेट से सब की, नंबर ऑफ राउंड्स, ब्लॉक साइज, की साइज, ये सारी चीजें मिलकर फीस्टल स्ट्रक्चर को, फीस्टल साइफर को बड़ा स्ट्रांग बनाती हैं, और क्रिप्टो एनालिस्ट्स या जो आपके अटैकर्स हैं वो इसको ब्रेक नहीं कर सकते।
अच्छा, इसी तरह फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करें, हम डिज़ाइन फीचर्स की अगर बात करें, फीस्टल साइफर को और फीस्टल नेटवर्क को बनाने के लिए चंद चीज़ों का ये भी ख्याल रखना पड़ेगा दैट फास्ट सॉफ्टवेयर, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट. वी डोंट वांट कि हम एक ऐसा साइफर बनाएं जो कि प्रोसेस करते हुए 1.5-2 घंटे ले ले. ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, मतलब 64 बिट को के प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो 1.5-2 घंटे ले ले. डेफिनेटली नॉट, हम ऐसा नहीं चाहते. बट वी वांट कि एक ऐसा एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम हो जो कि क्विकली काम करे और एफिशिएंटली काम करे. अगर उसने इनक्रिप्ट करते हुए 1.5-2 घंटे ले लिया तो इसी तरह वो डिक्रिप्ट करते हुए 1.5-2 घंटे ले लेगा. ठीक है, सो वी डोंट वांट सच एन एल्गोरिथम विच इज वेरी टाइम कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग. ईज ऑफ एनालिसिस, to be able to develop a higher level of assurance as to its strength. एक है ease of use या ease of analysis, दूसरी है strength. अब इस feastal नेटवर्क की अगर आप बात करें या feastal साइफर की आप बात करें तो ये समझने में भी आसान है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की बात करें सो सिक्योरिटी भी इसकी स्ट्रॉन्गर है. सो आप एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएं, आप एक ऐसा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम या एक ऐसा आप सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बनाएं जो कि जिसमें ये 3 खूबियां हों, जिसमें ये उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में टाइम भी कम लगे, ईज ऑफ एनालिसिस भी हो लेकिन साथ में सिक्योर भी हो, और डिक्रिप्शन जो है वो भी ऐसा ना हो कि इनक्रिप्शन के लिए आप एक एल्गोरिथम यूज करें और डिक्रिप्शन के लिए आपको अलग से कोई दूसरा एल्गोरिथम यूज करना पड़े. सो इनक्रिप्शन जिस एल्गोरिथम से हो रही है, डिक्रिप्शन भी उसी तरीके से, उसी आसानी से, उसी टाइम से डिक्रिप्शन भी हो जाए. फीस्टल साइफर की इनक्रिप्शन की हमने बात की इस पर्टिकुलर स्लाइड में. ये आपके इनक्रिप्शन का प्रोसेस है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल हो रहा है, इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें. ठीक है, सो ये आपका डिक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाएगा और डिक्रिप्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से. सो आप साइफर टेक्स्ट होगा, साइफर टेक्स्ट को आप 2 हाफ्स में तकसीम करेंगे, 2 हाफ होंगे, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ पर एक सब की और आएगी जिस पर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर और का ऑपरेशन होगा और ये अगले राउंड के लिए इनपुट के तौर पर काम करेगी. इसी तरह जितने राउंड्स आपने इनक्रिप्शन के लिए अप्लाई किए हैं, यही राउंड आप डिक्रिप्शन के लिए अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा. जी, बात करते हैं डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की. डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज्ड टू बी अ प्रीडोमिनेंट सिमेट्रिक की एल्गोरिथम फॉर इंक्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा. डीएस की अगर बात करें सो इट यूज्ड टू बी. मैंने यूज्ड टू बी क्यों कहा, आगे आप देखेंगे कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं कि जब डीएस बना उस वक्त ये बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन कुछ ऐसे क्रिप्टो एनालिस्ट आए, कुछ ऐसी कंप्यूटेशन मशीन्स आई जिन्होंने डीईएस को भी ब्रेक कर दिया. वो क्या है, उनकी डिटेल्स आगे आ रही हैं. इट वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इन द एकेडमिक वर्ल्ड. मतलब अगर आप 1970s की बात करें तो 1970s में डीएस के एल्गोरिथम का आना एक बहुत फंटास्टिक, एक बड़ी रेवोल्यूशन थी कि इतना खूबसूरत एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बन गया है जो कि किसी किस्म के सेंसिटिव डाटा को सिक्योर करेगा. सो डीएस जो है वो अर्ली 1970s में आईबीएम का जो एम्प्लॉय था होस्ट फीस्टल, उसने जो फीस्टल साइफर बनाया था उसकी बेस पर डीएस बना. फिर उसके बाद जो है ये एल्गोरिथम सबमिटेड टू नेशनल ब्यूरो ऑफ एनबीएस पर इसको दिया गया होस्ट फीस्टल के साइफर को, और होस्ट फीस्टल के साइफर पर जब नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने इसको क्लासिफाई किया, इसको डिक्लेयर किया, तो उन्होंने इसको डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का नाम दिया. ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें so IBM proposed Lucifer, an encryption algorithm that uses 64-bit keys. 2 years later, MBS in consultation with NSA made a modified version of that algorithm into a standard. So मतलब NBS ने लूसीफर और होस्ट फीसल के साइफर को जो है वो स्टैंडर्डाइज किया और उसका नाम इन्होंने डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड रखा. काम कैसे करता है ये डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड? इट टेक्स 64 bits of data and a 56 bit of key and executes 16 cycles. 64 बिट का डाटा है, प्लेन टेक्स्ट है, 56 बिट की है और 16 राउंड्स हैं. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 गोइंग ऑन राउंड 15 एंड राउंड 16. 16 राउंड्स हैं. सब्स्टिट्यूशन भी इसमें परफॉर्म होती है,
परम्यूटेशन भी इसमें परफॉर्म होती है और ये सारी चीज़ें मिलकर आपका एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। इसके स्टेप्स बिल्कुल वही हैं जो कि हमने फीस्टल साइफर में पढ़े थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि फीस्टल साइफर को जब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया फॉर्मली, जब NBS ने, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने जब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया तो उन्होंने इसको DES का, डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का नाम दे दिया। वेरी सिंपल वे टू क्या है, सो यू हैव गॉट 64 बिट्स ऑफ डाटा, you apply a 56 bit of key, there is a DES, data encryption standard, and it gives you an output, a cipher output of the same 64 bits. मजीद हिस्ट्री इसकी ये है that in the summer of 1998 the Electronic Frontier Foundation EFF built a DES cracker machine at a cost of $250,000. 1998 में इतना स्ट्रॉन्ग डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ब्रेक हो गया, क्रैक कर दिया गया। इट हैड 1536 चिप्स, मतलब इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर था या वो जो भी मशीन थी, उसने DES को क्रैक कर दिया। एंड इट वर्कड एट अ रेट ऑफ 88 बिलियन कीज पर सेकेंड। ये जो मशीन थी, ये जो कंप्यूटर था, ये 88 बिलियन कीज पर सेकंड के हिसाब से काम कर रहा था। अब अगर आप उस पर ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें, सो ब्रूट फोर्स अटैक DES पर जो है वो इट कुड टेक ईयर्स एंड ईयर्स, लेकिन जो मशीन उन्होंने डेवलप की EFF ने, उसमें 1536 चिप्स थी, 88 बिलियन कीज पर सेकंड के हिसाब से काम करता था। उस मशीन ने 56 आवर्स लगाए, ब्रूट फोर्स अटैक किया, सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज देखी और आपका DES 1998 में क्रैक हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्रैक हो गया। 1 year later, with the cracker working in the tandem with 100,000 pieces over the internet, a DES encrypted message was cracked in only 22 hours. वहां पे तो उन्होंने $250,000 की मदद से एक मशीन बनाई थी। लेटर ऑन, मतलब कोई नई मशीन बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आपने सिर्फ जो है इसको क्रैक करने के लिए तकरीबन 1 लाख कंप्यूटर्स इंटरनेट के थ्रू यूज किए गए और 22 आवर्स लगे DES को क्रैक करने में। And one common way to make DES more secure today is to encrypt 3 times using DES, triple DES या 3DS जिसको कहते हैं। 3DS पावरफुल है DES के मुकाबले में, लेकिन स्लो है और इसीलिए एक अच्छे एल्गोरिथम की ज़रूरत को महसूस किया गया। DES की हिस्ट्री ये कहती है कि 1970s में जब ये डेवलप हुआ, जब ये क्रिएट किया गया, तो एक फंटास्टिक रिवोल्यूशन आ गई। बड़ी दुनिया खुश थी कि एक बड़ा ज़बरदस्त सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम डेवलप हो गया और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 64 बिट ऑफ की है, 16 राउंड्स हैं, 56 बिट की इस पे अप्लाई होती है, इसमें परम्यूटेशन भी इन्वॉल्व है, इसमें XOR का फंक्शन भी इन्वॉल्व है, हर राउंड की आउटपुट अगले राउंड के लिए इनपुट है। ये सारी चीज़ें मिलकर DES को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, लेकिन 1998 में इसको क्रैक कर दिया गया। यही देखने के लिए क्योंकि ढेर सारा सेंसिटिव डाटा DES के थ्रू, गवर्नमेंट का सेंसिटिव डाटा, बैंक्स का सेंसिटिव डाटा DES के स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा था, DES क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर रहा था, लेकिन जब क्रैक कर दिया गया तो सबको अपनी सिक्योरिटी की फिक्र हो गई। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल DES भी आया। ठीक है, लेकिन जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फास्ट होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 64 बिट को इनक्रिप्ट करते हुए उसको फॉर एग्जांपल 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, सो आपका ढेर सारा अगर डाटा इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, तो आपका तो चंद बिट्स ऑफ डाटा को इनक्रिप्ट करते हुए पूरा दिन लग जाएगा। सो आपने जो है वो ऐसे तरीके से एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बनाना है जो कि फास्टली भी काम करे। ट्रिपल DES भी आया जो DES के मुकाबले में बहुत सिक्योर था, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता था, लेकिन स्लो था, तो एक नए एल्गोरिथम की जरूरत को महसूस किया गया। ये DES का क्रैक हो जाना, दैट बिकेम अ नीड टू डेवलप AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो DES की जितनी भी डिफिशिएंसी थी जो सिक्योरिटी लैब से, वो फिर एक नया स्टैंडर्ड आया AES के नाम से, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और फिर इसको यूज किया जाने लगा।
सिंप्लीफाइड डीएस की बात करें सो एसडीएस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये 1996 में प्रोफेसर एडवर्ड शीफर ने बनाया जो कि सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी में था। इट टुक 8-bit block of plain text and 10-bit key as input and produced an 8-bit block cipher text output। मतलब 8-bit का plain text था, 10-bit की अप्लाई करते थे, 8-bit का आपको आउटपुट होता था। इसमें भी मोरलेस सेम फंक्शन से इनिशियल परम्यूटेशन थी, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, सिंपल परम्यूटेशन थी, फंक्शन एफ था और फाइनली आप इनवर्स परम्यूटेशन अप्लाई करते थे। सो ये सिंप्लीफाइड डीएस का स्ट्रक्चर है। सो इनिशियल परम्यूटेशन आप देख सकते हैं, इनक्रिप्शन जब हो रही है सो इनिशियल परम्यूटेशन हुई, फिर उसके बाद फंक्शन अप्लाई किया गया, फिर आपकी SW स्विच फंक्शन या परम्यूटेशन अप्लाई की गई, उसके बाद फिर की अप्लाई की, फिर इनवर्स परम्यूटेशन यूजिंग 8-bit की और आपके पास डिक्रिप्शन आ गया। सो मतलब डीएस की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, ठीक है। ये भी उस क्रैक होने से पहले की बात है। अच्छा जी, डीएस की एग्जांपल लें, हम इसकी एक रफली सी एग्जांपल लेते हैं। सो अगर प्लेन टेक्स्ट की बात करें, मैसेज की बात करें, सो मैसेज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें पता है हेक्साडेसिमल में 10A से रिप्रेजेंट होता है, 11B से रिप्रेजेंट होता है और आपका F जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको बाइनरी फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें सो ये इसकी बाइनरी फॉर्म ये है पूरे मैसेज की। इसको आपने दो हाफ्स में तकसीम किया, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। L इज इक्वल टू जो आगे बता रहा है ये लेफ्ट हाफ है और R इज इक्वल टू जो बता रहा है ये राइट हाफ है, जो कि डीएस के लिए रिक्वायर्ड था। सो द फर्स्ट बिट ऑफ M इज 0, द लास्ट बिट इज 1। 0 है पूरे मैसेज का पहली बिट और लास्ट मैसेज की 1 है। सो वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह इसको पहले राउंड में गुजारा, दूसरे राउंड में गुजारा, की अप्लाई की, बाकी इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, परम्यूटेशन हुई, हर राउंड की आउटपुट अगले राउंड के लिए इनपुट थी और फिर की का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। सो चूंकि ये 64 बिट ब्लॉक्स की है, ठीक है, सो 56 बिट्स की ये चूंकि ये 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेता है, डीएस उस पे 56 बिट की अप्लाई करता है और की जो है वो आप इस कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं कि इसमें 8, 16, 24, 32, 40, 48 इनको आप यूज नहीं करते। अगर की बात करें सो की एग्जांपल है लेट के बी दी हेक्साडेसिमल की, जो कि 56 बिट की आपके पास होनी चाहिए। सो की भी आपके पास देख सकते हैं कि 0 से लेकर और ये पूरी अगर उसका बाइनरी कन्वर्जन करें सो ये की है। ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद इनिशियल परम्यूटेशन, राउंड 1, मेन की का के सब की यूज करना राउंड 1 पर, मेन की का सब की यूज करना राउंड 2 पर, इसी तरह मेन की का सब की यूज करना लास्ट राउंड 16 पर, फिर स्वैप करना, फिर इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करना। ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद लेफ्ट हाफ पर भी और राइट हाफ पर भी आपके पास एक इस किस्म का बाइनरी टेक्स्ट आता है। इस बाइनरी टेक्स्ट को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, लास्टली जो स्टेप है आपका इनवर्स परम्यूटेशन अप्लाई करने का, सो ये चीज आती थी और द इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द मैसेज बिकेम इनटू दिस। मतलब आप देख सकते हैं कि मैसेज 0 1 2 3 4 5 था, इसका साइफर टेक्स्ट जो हमें ऑब्टेन हुआ, अचीव हुआ, वो है 85E एंड दिस वन। सो यू कैन सी, यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एस्टिमेट दैट हाउ complex and how strong the DES encryption algorithm was when it was developed, but this very strong data encryption standard was ultimately cracked. Decryption की बात करें, so decryption बिल्कुल same operations लेकिन inverse order में या reverse order में apply करते थे और using the same key। आइए आज के लेक्चर की समरी की बात करते हैं। हमने सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी को डिटेल से देखा, इसके बाद हमने फीस्टल स्ट्रक्चर को देखा और फीस्टल स्ट्रक्चर जैसे कि हमने होस्ट फीस्टल एक IBM का एम्प्लॉय था जिसने 1990s में एक सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी एक एल्गोरिथम बनाया जिसमें उसने कम्बिनेशन रखे, मिक्स एंड मैच था, उसमें मुख्तलिफ राउंड्स रखे, की का साइज रखा, उसको दो हाफ्स में तकसीम किया, हर राउंड की आउटपुट दूसरे राउंड के लिए इनपुट थी, हर राउंड पर कुछ
परम्यूटेशन के फंक्शन, कुछ जो है वो एक्स और के फंक्शन अप्लाई हुए, और उसके बाद जो है वो आपका साइफर टेक्स्ट हासिल होता था। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो कि टोटली बेस करता है फीसल साइफर पर, लेकिन एनवीएस ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसको जो है वो 1970 से ऑनवर्ड जो है वो यूज़ किया जाने लगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसमें 16 राउंड्स हैं, 64 बिट की इनपुट लेता है, 56 बिट की की लेता है, वही स्टेप्स अप्लाई करता है। 16 राउंड्स हैं, हर राउंड पर मेन की सब की अप्लाई होती है, हर राउंड पर मेन की सब की अप्लाई होती है, और इनिशियल परम्यूटेशन, फिर इन्वर्स परम्यूटेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद आपका 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और डिक्रिप्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, लेकिन इनवर्स ऑर्डर में, ऑल्सो यूजिंग द सेम की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर कंटिन्यू रखेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जिसमें हमने बात की दैट data encryption standard was cracked in 1998, so there was a need to develop a further enhanced, a new encryption algorithm, and we came up with the development of advanced encryption standard. What advanced encryption standard is and how it works, this will be part of our discussion in next lecture. I hope that you enjoyed today's lecture and you have developed a good understanding of what data encryption standard is and how it works and what are the phases that are used. I'll see you with more details in next lecture. Bye for now. Take care and Allah Hafiz.